السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اما بعد، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن ہم سب کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بات کہنے کے لیے میں تیار ہوا ہوں وہ بات صحیح طریقے سے کہنے کی اور ہم سب کو سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھو، غزوہ تبوک کے بعد یہ ہوا، طائف والے تھوڑے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ طائف کے لوگ، طائف والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینا وہ بول کے جاتے اس ٹائم کو پتھرا سی مار مار کو خون و خون کروا لینا، وہ لگا میس یہ کہ عبد یالیل اور اس کے ساتھ اور 6 لوگ، یہ لوگ اب پورے مل کو آتے ہیں مدینہ طائف سے۔ دور سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں دیکھتے، یہ لگا آتے ہیں سو۔ اب کب ہے تو دیکھتے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولتے کہ میں فوراً اب بھی جا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتا ہے، طائف والے آتے ہیں ہمارے کنے کو، تو بول کو میں بتاتا ہوں جا کو، بول کو بولتے اچھا، وہ بول کو جا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عبد یالیل بھی اس کے ساتھ اور 6 لوگ مدینے کی طرف آتے ہیں، کو بول کو بولتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کو دیکھ کو بہت خوش ہو جاتے، طائف والے آتے ہیں لوگوں کو بہت خوش ہو جاتے رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہاں غضب ہونا تھا، کئی کو وقت تو خون و خون کروا لے، وہ لگا کہ دیکھو ہمارے نبی خوش ہوتے ہیں، کیا یہ لوگ مدینہ کی طرف آتے ہیں، وہ ہمیں ہے تو ہم نہ کون تو تکلیف دیا جی، انہیں ہمارے علاقے میں آتا ہے، ہمیں ان علاقے میں بیچتم کو انہیں ہم نہ تکلیف دیا، ہم نہ ماریا پیٹا، انہیں ہمارے علاقے میں آتے ہیں تو اسے ہمیں چھوڑتے جاؤ، چھوڑتے نہیں نا، انہیں آتا ہے کہ مارے تو غصے سے یہ ہو جاتا اسے کب کیسا حملہ کرنا کو بول کے دیکھتے رہتے ہیں ہمیں۔ ویسے کہ وہاں دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کیا بھی نہیں، خوش ہوتے ہیں، غصہ ہونا نہیں، خوش ہوتے ہیں، آتے ہیں بول کو، وہ لگا آ جاتے۔ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لگا کے واسطے ٹینٹ ڈالتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں اندر، تھوڑے روایت میں مسجد کے اندر ڈالتے کو بول کو ہے، تھوڑے روایتوں میں مسجد کے باہر ڈالتے کو بول کو ہے ٹینٹ۔ اب یہ کئی کو ٹینٹ ڈالنا، کئی کو مسجد کے پاس ہی کئی کو ڈالنا، کئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینا کو بول کو گشتم کو یہ لگا، سنے نہیں کیا بھی سنے نہیں، سرکار پتھرا سے مار مار کو ہلاک کر ڈالینا، ذرا مسجد کے پاس ہے تو اصل کیا بولتے ہیں کہنے کا لگا سنتے کو بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے نزدیک ہی ڈالتے، ڈال کو ٹینٹ ڈال کو بٹھاتے، آئے گانے پوچھتے تمہیں اسلام کب قبول کرتے، ایمان کب لاتے تمہیں لگا کو بول کو فرسٹ کوشچن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگا کو یہ پوچھتے، وہ لگا میں سی عبد یالیل بات کرتے، کیا کو ہم نہ جرے سوالہ ہے، وہ سوالات کو تمہیں جواب دیو پہلے کو بولتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تمہارے کیا سوالہ ہے پوچھو میں جواب دوں گا، تو بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے۔ اب دیکھے تو انہوں نے فرسٹ سوال زنا کے بارے میں پوچھتے، زنا کے بارے میں کیا ہو تمہارا رائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے بالکل جائز نہیں، یہ حرام ہے،
ऐसा जिना हमें कर सकते नहीं को बोलते। वो कुरान की आयत पढ़ते हो, कुरान की आयत सूरह इसरा आयत 30 पर 2, जिना के करीब ना पटको, वो बहुत बुरा काम है और बड़ा ही बुरा रास्ता है, ये अल्लाह बोला। सो जब नाजिल नहीं हुई, ऑलरेडी इससे पहले कब की नाजिल हो गई, वो आयत पढ़ को सुनाते वलगा को। अल्लाह ऐसा बोलता है जायज नहीं इस्लाम के अंदर। अच्छा, हमारा दूसरा सवाल, आप पूछो दूसरा सवाल क्या? सूद खाना, वड्डी, वड्डी खाना कैसा वो बोलते सूद। आप सल्लल्लाहु बिल्कुल बोल डालते हराम नाजायज वड्डी, तो बोलते किसी कीमत में भी नहीं, क्या जर्रा भी खाने का गुंजाइश नहीं है क्या, वो पूछते असल नहीं है तुम्हें खा सकते नहीं, जहन्नम में जाना कर ले तो खाओ वड्डी, सूद खाओ को बोलते आप सल्लल्लाहु। फिर वो लगा बोलते जिना हमारे बाप दादा का नहीं से आता है, सो ये हमें कैसा छोड़ते सूद, जिसके वजह से हमें करोड़पति हो गया, आज अरबपति हो गए, वड्डी खा को आज हमें अरबपति हुए सो, करोड़पति हुए सो, हमें कैसा छोड़ते हैं सूद। हमने इतना फायदा देता है तो वड्डी में चाहता है सो फायदा, सूद में छे हमें कहीं को छोड़ना, हमें छोड़े तो हमारा नुकसान होता, तो बोलते हैं वाला का। फिर को आपसे वो जवाब दिए तुम्हें कितने बोले तो भी जायज नहीं को बोलते। अच्छा, तीसरा सवाल पूछता हूँ, तीसरा सवाल क्या पूछो? शराब के बारे में, शराब पीना कैसा है तुम्हारे अंदर? आप से खुल्लम खुल्ला बोल डालते शराब बिल्कुल जायज नहीं असले हो। वो लगा बोलते हम ना खुशी आया तो भी गम आया तो भी हमें शराब ही पीते, हम ना गम आया तो भी खुशी आए तो भी हमें शराब पी को डांसा डालना, मजे उड़ाना, ये करते रहते हमें। वैसा का तुम्हें शराब भी नको कहते हैं, कैसा को बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सवाल हो गए क्या तो बोले बसता, ये बोलते ये सब भी नहीं, मेरी तरफ से क्या भी बोलना नहीं तुमने लगा को, ये पूरे अल्लाह पहले बोलना लिया मेरा ये ऑर्डर से, मेरे ये हुक्मा, इसके ऊपर चलना चाहिए पाबंदी सी, इसमें दो राय क्या भी नहीं है, एक ही राय, चलना है तो चलो नहीं तो छोड़ को चल जाओ। तो बोल आपसे बोलते ये राय मेरे तरफ से मैं क्या भी बोलना नहीं, अल्लाह ऑलरेडी बोल डाला, ये हुक्मा लिख डाला पहले से, तुम्हें आए को बोल को मैं क्या भी ऐसा बोलना नहीं, तुम्हें आए को बोल को अब उतारना नहीं, ये कब की उतार डाला अल्लाह पहले बोल डाला, ऐसा इस्लाम के अंदर एक जायज नहीं है ये काम पूरे को बोल को, ये मैं क्या भी हमारे तरफ से बोलना नहीं को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते। उधर वो लगा सोचने में पड़ते हमें ये काम छोड़ सकते नहीं तो बुरा या ये को वो 6 आदमी आए को बोल को बोला ना अब्दी आलिल के साथ, वो 6 इंसानों में से एक आदमी उठ को बोलता ये लगा में भी बहुत सारे जरो है, इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया इस्टम को जिना करते सो, सूद खाते सो, शराबे पीते सो, ये लगा ये आज कितने मुत्तकी बन गए, कितने नेक परहेजगार बन गए, ये लगा भी करते सोचो कामा, लेकिन ये लगा इस्लाम कबूल कर डाले, इस्लाम कबूल कर दो कभी तो अल्लाह ये शराब पीना जायज नहीं, जिना करना हराम, सूद खाना हराम को बोल को कभी तो बोले कि ये लगा छोड़ डाले, ये लगा छोड़े स्टम्पो हमें कहीं कुछ छोड़ सकते नहीं को बोल को, उसमें से एक आदमी बोलता, वो आदमी बहुत समझदार आदमी, देखो उतने आदमी में वो एक आदमी खड़को से बात करना कि तो कितनी बड़ी बात बोलो, वो आदमी के अंदर भी अंदर जज्बा है इस्लाम कबूल करने का, लेकिन फौरन जाहिर नहीं करा वो आदमी, ऐसे जवाब दिया, ऐसा बोलने के बाद उन लोगों के अंदर भी थोड़ा सोचने पर मजबूर हो गया, वो लगा भी मजबूर हो जाको। अच्छा, फिर आखिर अच्छा ये लगा छोड़ सके ना, वो लगा के अंदर भी एक ख्याल आया, ये लगा छोड़ सकेगे तो हमें माने कहीं छोड़ सकते नहीं, हमें भी छोड़ सकते हैं, नहीं होता को बोल को क्या भी नहीं है, हमें छोड़ डालेंगे वो बोल को, वो लगा भी अच्छा हमें भी छोड़ डालते वो बोलते। अब इसी ये मालूम होता है नेकी में अगर कोई इंसान इल्म में हमारे से ऊंचा है तो या इल्म में ज्यादा है तो हमें उसे इल्म वाले आदमी को देखो, हमें बगैर इल्म वाले हमें उसका इल्म को देखो, हमें भी उसके अंदर हमें भी उसको इल्म हमें सीखना नहीं, उससे अभी ज्यादा हमें सीखना करने का हमारे अंदर जज्बा पैदा होना वो इल्म का। लेकिन कभी तो बुराई कामा कौन तो करते हो तो नेक कामा करते समय हमारे अंदर वो जज्बा आना, ये अगर नेक काम करते हैं मैं कहीं नेक काम कर सकते नहीं, फलाना आदमी नमाज पढ़ता है 5 वक्त की नमाज मैं कहीं पढ़ सकते नहीं, उनकी मेहनत का इंसान इतना, फलाना आदमी शराब पीना नहीं मैं कहीं को पिए नहीं सर नहीं रख सकता, फलाना आदमी जिना नहीं करना है फिर मैं कहीं को करता है, मैं कहीं को करे नहीं सर रह सकता नहीं को बोल को अपने आप के ऊपर हमें आज हमें वैसे सवाल कर लेना, फलाना आदमी कहीं को नेक रहता है हमें कहीं को नेक नहीं है, हमें नमाज कहीं को सीखते नहीं है, कहीं सीखना सकना नहीं है, कुरान कहीं को पढ़ना सीखना सकना नहीं है, हमें वो आदमी कैसा सीखे भी रे
कितने बूढ़े 80-90 साल के बुढ़े भी आज नमाजा सीख को फौरन नमाजा पढ़ते हैं, कुराना पढ़ते हैं। वो लगा सीखते टाइम पर हमें क्या सीख सकते नहीं करना का एक जज्बा हमारे अंदर भी रहना ऐसा है। लेकिन कोई से इंसान बुराई करते टाइम को देखो, उन बुराई करता है मैं भी करे तो क्या होता वो बोल को नहीं जाना, बुराई में बिल्कुल नहीं जाना। नेकी में हमें ऐसा दूसरे से बोल लेना, उन कर सकता है तो मैं कहीं को कर सकता नहीं, उन पढ़ सकता है तो मैं कहीं को पढ़ सकता नहीं, कहने का एक जज्बा रहना, बुराई में ये नहीं रहना। फिर को वो इल्म वाले आदमी देख को अंदर नफरत नहीं रहना, हमारे दिल में नफरत पैदा नहीं हो जा, मेरे करने है उसका नहीं है को बोल को बुग्ज कीना हमारे दिलों में आना, ये क्या भी नहीं रहना हमारे दिलों में। अब वो भी एक होता है, वो आदमी एक समझदार आदमी ऐसा बोलने के बाद वो लगा अभी सोचने पर मजबूर हो गए। अच्छा ये लगा छोटे स्टम्प हमें कहीं छोड़ सकते नहीं को। अच्छा बिला आखिर वो लगा सोचने के बाद थोड़ा वक्त लेने के बाद वहीं पे रह के फिर आप सल्लल्लाहु से बोलते, अब्दे यालील बयान करते, वो 6 लोगों की तरफ से सब भी बोलते हमें इस्लाम कबूल कर डालते आपके हाथ के ऊपर। वैसा ताइफ के ऐसे 6 लोग और ये अब्दे यालील, ये 7 लोग इस्लाम कबूल करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के ऊपर। अब अब्दे यालील बोलते कि अब्दे यालील रजी अल्लाह तआला अन्हु बोलते कि या रसूल अल्लाह हमारे ताइफ में एक बड़ा बुद्ध है, उसे हमारे बीवी बच्चे पूजना करते, उसे जर्रा हम ना एक 3 साल टाइम दियो, 3 साल टाइम दियो, 3 साल तुम्हें छोड़ डालो, हमें तो इस्लाम कबूल कर डाले ना, हमें हमारे बीवी बच्चा को हल्का समझा लेते, और अगर एक ही दम बदलना गए तो होता नहीं, जर्रा टाइम दियो, 3 साल दियो हम ना, वो बुद्ध को क्या भी करना रखो, वो लगा क्या करते हैं तो करिन दो, वो बोल के बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन बोलते हरगिज होता नहीं, शिर्क में असल ऐसा का कामों में जर्रा बराबर भी मैं तुमने क्या भी इजाजत देता नहीं कहते। अच्छा 3 साल लीजिए, 1 साल दियो मुझे, 1 साल दियो, मैं मेरे बीवी बच्चे को कैसा है तो भी बदला तुम्हें, 1 साल मुझे टाइम दियो। आप सल्लल्लाहु फिर बोलते हरगिज होता नहीं ये काम है। अच्छा 1 महीना दियो, कम से कम 1 महीना, इससे कम नहीं या रसूल अल्लाह, इससे कम है तो होता नहीं, हमारे बीवी बच्चे इस्लाम लाते नहीं, तुम ऐसा बोले तो हमें होते दूर कुछ होते, लेकिन पूरा फैलना रखते तो टाइम पकड़ता, तुम्हें 1 महीना भी नहीं दियो तो कैसा, 3 साल का 1 साल का नहीं कहे, अब 3 महीने नहीं 1 महीना, 1 महीना कम से कम दियो, कम से कम कहे तो जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते बिल्कुल इजाजत देते नहीं, 1 महीना भी देते नहीं, आपका बीचे संगत से जाको से तोड़ा चाहिए को बोल कहते, 1 रोज भी नहीं ना आपका बीचे मैं हुक्म देता है आप कब जागो वो बुद्ध को तोड़ना जाको, वो बोलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते ताइफ में है सो बुद्ध को तोड़ना को। अब वो लगा अब्दे यालील बोलते उसके तरफ से या रसूल अल्लाह अच्छा हमें तो तोड़ सकते नहीं, हमें तो तोड़ सकते नहीं, हमें को तोड़ेगे तो वह ताइफ के हमारे वाले हमारे खिलाफ हो जाते, हमें बहुत कम अब इस्लाम कबूल करे सो हमें 6 जनों 7 जनों चना, तुम्हें तुम्हारे तरफ से किसे तो भेज लो वो बोलते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुगैरा इब्न शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें को इंतखाब करते, उन्हें को हुक्म देते तुम्हें जाको वो ताइफ में सो बुत को तोड़वाल का जाओ, कौन आ रहा है तो भी किसका बात भी टिकना नको, पहले वो बुत को तोड़वाल का आ जाना तुम्हें को। उन्होंने के साथ चंद सहाबा को लेकर चले जाते, थोड़े सहाबा को लेकर चले जाते ताइफ में। ताइफ कनेक्ट जाने के बाद वह अबे मुगैरा इब्न शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत मजाका करते, ये आदमी ये सहाबी बहुत मजाका करते सो ये सहाबी। अबे वह जाने के बाद इन्हें कुल्हाड़ी लेकर रेडी होने हैं उसे वो बुत को तोड़ डालने के वास्ते। अब वहां के वाले इलाके वाले पूरे जमा हो गए, ताइफ के वाले पूरे तोड़ने आया वो बोलकर, वहां के वाले बोलते हैं क्या को अभी ने कुल्हाड़ी लिया ना, इन्हें मारने का वास्ते जर्रा कोशिश करा तो भी बस मारने की जरूरत नहीं, कोशिश करा तो बस इसका हाथ टूट जाता गिर जाता, इससे होता नहीं, हमारा बुद्धि से गचुराता नहीं, उसका पावर क्या होगी बताता, उसका ताकत क्या होगी बताता को बोल को बोलते बोला गया। अब मुगैरा इब्न शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु कुल्हाड़ी लेकर मारने उठा को लोग गिर जाते। ये मजाक है, उन्हें मजाक से करते, जो मजाक करते सुनो वो बोलो ना मजाक में उन्हें से गिरते, असल हम क्या खोलते नहीं, खाली ऐसा सही भी गिर गए कहना रहते उन्होंने पूरे आपस में बात कर लेते रहते, अरे बोले ना हमारा बुद्ध कितना ताकतवर की देखो, हासिल उठाना उठाया नहीं, ये बीच में गिर गया आदमी, हमारा वो इतना पावरफुल है बुद्ध इतना ताकतवर हमें करते हुए सो ये लगा कि क्या भी नहीं को बोलते, कब है तो लगा ये वो बोल को बोले ना शुरू करेगी, कब है तो सब भी साइलेंट हो जाते कि मुगैरा इब्न शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो जाते। असल तुम्हें क्या समझते हैं
ये बुद्ध मुझे क्या तो कर सकता समझते हैं क्या तुम्हें? ये पत्थर का बुद्ध है, ये पत्थर है, तुम्हारे हाथों से तुम्हें बनाया से बुद्ध है, ये क्या कर सकता गलत है तुम्हें? असल है सो खालिक, पूरी कायनात का खालिक अल्लाह, उसकी तुम्हें इबादत करो, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अगर उन चाहे तो अब का बीच मेरा हाथ काट डाल सकता, अब का बीच मेरा जान ले सकता, अब का बीच मुझे यहाँ गिरा डाल सकता, क्या है तो भी कर सकता। वो करने वाला एक ही जात है, वो जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह छे, उसकी इबादत ही करो। ये बुद्धा सी क्या होता नहीं, ये खाली पत्थर है, ये पत्थर है, ना हम ना नुकसान पहुंचा सकता, ना हम ना फायदा पहुंचा सकता। तुमने लगा कि क्या भी ये फायदा दे सकता नहीं, क्या नुकसान भी पहुंचा सकता नहीं। नुकसान फायदा देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह छे। वो बोल को वो बुद्ध को तोड़ डालते, तोड़ डाल को आ जाते, आको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल डालते, या रसूल अल्लाह तोड़ डालम, तुम्हारा हुक्म के मुताबिक कर डालम को। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करने के बाद ताइफ वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्या फतरा वगैरह की सबको मालूम। वक्ता फतरा वगैरह से भी जाको अब्दे यार बहुत बड़ा शख्सियत है, उन्होंने पहले भी है तो उन्हें भी जाकर इस्लाम कबूल करेगा बोले तो कभी तो मालूम होता कि हल्का हल्का अभी इस्लाम में ग्रुप्स आते रहते, अभी कभी तो अब्दे यानी कबूल करना का इस्लाम में। ताइफ में उसको अब बड़ा शख्सियत कौन भी नहीं, वैसा का उन जाको इस्लाम कबूल कराया, वो भी खुद उन गया, कौन भी बुलाया नहीं सर को, खुद जाको इस्लाम के बारे में जाको भेंट को इस्लाम कबूल कर गया तो मामूली बात नहीं है। असल हमें भी गौर करना को बोल को ये एक अदना उसमें ये आ जाता जज्बा। कब है तो ऐसा आता कि काफले जाते रहते ना, वो काफले में बड़े बड़े काफले, एक रिवायत में आता है कि 20 है और एक रिवायत में आता है कि 50 काफले एक ही दम है आगे मदीने में को कई को इस्लाम के बारे में मालूमात करने को ये लगा भी ऐसा चाहिए। इस्लाम बरहक को बोल को लगा समझे तो सुनने के बाद इस्लाम के बारे में सुनने के बाद बरहक को समझे तो अच्छा, वो बोल को लगा भी इस्लाम कबूल करने के वास्ते। अब ये महीने पूछे वक्त का महीना को बोल को बोले बड़े, इसे वक्त का महीना को कई बोले रखते तो ऐसा एक ही एकदम एक ग्रुप ऑफ आर्मी काफला एक बड़ा एक एकदम ऐसे उसे वक्त बोलते, इसलिए वो साल को वक्त का साल को बोल को दिए नाम है। अब ये लगा कौन कौन आए क्या हुआ करने का इंशाअल्लाह अगले जुम्मा देखेंगे हमें। अबे ये 9वें हिजरी में ना होता है, सो ये पूरा 9वें हिजरी में क्या हुआ करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह तआला अन्हा रहते। इन्हों कौन है? उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह तआला अन्हा कौन है? उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु है, उनकी बीवी इन्हों है। तो इना का इंतकाल हो जाता, इन्हों इंतकाल हो जाते 9वीं हिजरी में। इना से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक बेटी सी उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को निकाह कराते। कौन उन्होंने? रुकया रजी अल्लाह तआला अन्हा, फर्स्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट बेटी बोले तो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को दिए, सो रुकया रजी अल्लाह तआला अन्हा को देखो फर्स्ट शादी कर दी ना को दिए। तो उन्होंने जंगे बदर के मौके के टाइम को बीमार की वजह से उन्होंने इंतकाल हो जाते। उसके बाद उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह तआला अन्हा को देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी को 2 बार देते, बेटी को देखो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को निकाह कराते। अब इनका का इंतकाल हो गया, कुलसुम रजी अल्लाह तआला अन्हा का भी इंतकाल हो गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को बोलते अगर मेरे पास और एक बेटी है तो और एक बेटी भी मैं तुमको देता हूं, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को। अब इसके बारे में सोचो, ये एक बेटी ऑलरेडी दे डाले, फिर अब दूसरी बेटी भी दे डाले, उन्होंने भी इंतकाल हो गए, फिर बोलते हैं अगर मुझे हब एक बेटी को बोलकर है तो भिरको मैं तुम नाच देता हूँ बोल को बोलते हैं उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का। कहते क्या उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु कितने दीनदार आदमी की, कितने अच्छे आदमी की, उनका कैरेक्टर कितना अच्छा की देखो, 3 बार भी देने को तैयार है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 बार दे डाले ऑलरेडी, 3वें बार भी अगर मेरे करे तो बोल को बेटी है तो फिर को मैं तुम नाच देता हूँ बोल को उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को बोलते हैं। इससे उनका इल्म के बारे में और उनकी शख्सियत के बारे में मालूम होता है, उन्होंने कितने अच्छे आदमी की, कितने दीनदार आदमी की। आजकल हमें एक बार ही बेटी देना चाहिए बहुत मुश्किल है, फिर
को बाद में दिए तो उनका इतना अच्छा है तो उसके बारे में ये वो बोल को बोलते रहते, उन्हें ऐसा इतना सताया मेरे बेटी को, ऐसा कराया वैसा कराया वो बोल को। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसा नहीं, एक बेटी को दे डाले, उन्हें इंतकाल हो गए, फिर दूसरी बेटी दिए, इन्हें इंतकाल होने बाद फिर बोलते हैं हाँ एक बेटी है तो भी मैं उस्मान कुछ देता हूँ बोल को। खुद उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से बोलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे मालूम होता है उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु कितने दीनदार आदमी, उनका कैरेक्टर कितना अच्छा होकर रहता, 3 में बार भी देने के वास्ते तैयार हो जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी बेटी, अपनी बेटी, फिर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, नबी की बेटी, फिर को मामूल आदमी भी नहीं, नबी की बेटी के देने के वास्ते तैयार हो जाते नबी खुद। अब 8 हिजरी में देखो, ये 9 हिजरी में हुआ सो, 8 हिजरी में हमारे नबी की सबसे पहले बेटी, सबसे बड़ी बेटी, सबसे पहले ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा, इना का इंतकाल हो जाता। इनो किसके तरफ से कहते हो? हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा है, उनके तरफ से पैदा हुई है। सुनो, इनो फर्स्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी, फर्स्ट बेटी इनो ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा। इना के खाला के बेटे से निकाह करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जाहिर नहीं हुई, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बने, करवाल के निकाह करने के बाद 10 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी को बोल को जाहिर हो जाते, अल्लाह नबूवत दे डालता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबूवत देने के बाद सबसे पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम कबूल करते, उसके बाद ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम कबूल करते। लेकिन उनके मर्द, उनके शोहर कौन है? अबुल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने माने पहले इस्लाम कबूल करे नहीं, इस्लाम कबूल करे नहीं, सर का वैसा रहते। इन्होंने माने ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा माने सारी जिंदगी उन्होंने इस्लाम कबूल करते हैं को बोल को वैसा इंतजार में छते ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा। एक बार क्या हुआ था कहते, जंगे बदर के टेम्पो हमारे दुश्मन आए ना, 313,000 है, हमें 313 वो लगा 1000 ना, वो 1000 लश्कर में इनो भी है, अबुल आस इनो भी है, जबकि इस्लाम लाई नहीं, इनो भी है, इना भी गिरफ्तार कर ले को फिदिया ले को छोड़ रहा है ना बहुत जगह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या करेंगे लगा को। जब फिदिया देते टेम्पो, अबुल आस के पास एक चेन रहता, वो चेन देते, वो चेन किसका करते तो खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का, उन्होंने अपनी बेटी को देते ज़ैनब को। वो कभी तो दिखते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमोशन हो जाते, अभी बहुत तकलीफ हो जाते, उनकी पहली बीवी का खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के याद आते रहते, उनके बारे में याद आ जाता था। इन्हें ये देखो सहाबा बहुत गमगीन होते, सहाबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन होते हैं बोल को। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते क्या करेंगे, ये फिदिया इसी लेंगे क्या करते, तो सहाबा सब भी बोलते लेना नको क्या नको, पैसा ज्यादा लेंगे, उन्हें देख भी ज्यादा लेंगे, हमें ना करें लेना नको क्या भी नको, तो वो बोलते अच्छा वो बोल को वो ले को भिजा डालते टेम्पो, बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब को मेरे पास भेजो, तुम्हें मैं तुमने आप छोड़ रहा था, मैं तुम्हारे कने क्या भी है चेन क्या भी लेता नहीं, फिदिया क्या भी, मुझे क्या जरूरत नहीं, मेरी बेटी को मेरे कने भेजो मदीने में को बोल को बोलते है, तो उन्हें अच्छा को बोल को बोलते। वैसा जी ना छोड़ डालते, चल जाते मक्का चल जाते, बाद में उन्हें बोलते अच्छा तुम्हें जाओ तुम्हारे अब्बा के पास को बोल को। ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला आते हैं तो रास्ते में मुश्रिका हमला करते, उनके ऊपर पाप हमला करते, हमला करने के बाद कैसा है फिर को इन्हों मदीने का आ जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते। अब क्या होता है तो अबुल आस तिजारत का काफले से जाते रहते जी, तिजारत के माल लेने को जाते हुए तो सहाबा हमला करते उनके ऊपर, जबकि उन्हें इस्लाम लाए नहीं, हमला करके छीन लेते सामान पूरा, उन्हें डायरेक्ट मदीने में कहा जाते, मदीने में आ जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते ऐसा ऐसा ले खींच ले मेरे कने सी, ये अमानत करना मैं जाको मक्का वाले को ऐसा अमानत में खयानत में कर तुम नहीं को बोले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब भी सहाबा को बुलाते, बुला को कौन कौन क्या क्या लिए कि सब भी अब भी जमा करो अबुल आस को दे डालो पूरा जाको, वो सब भी क्या क्या लिए कि वो पूरा उनका दे डालो, तिजारत का माल को बोलते। वैसा सहाबा पूरे क्या क्या है तो ले लेके वो पूरे जमा कर डाल को उनको दे डालते, उन्हें दे डाल को अब उन्होंने चल जाको मक्का चल जाको पूरा दे डालते, किसका क्या है कि माल तिजारत का वो पूरा दे डालने के बाद उनके दिल में अभी बहुत आ जाता, उनके दिल में नहीं मैं इस्लाम कबूल करना का जज्बा उनके दिल में अंदर पैदा हो जाता। कभी कभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको बुला को इनके तिजारत का माल इनके दे को भेजा डालते कि जब कनेसी न हो जाता, उसके बाद इन आपको मक्का में से आ जाते, इन्हों भी अभी मक्का में नहीं रहते, मक्का से फिर को इन्हों मदीना आ जाको, फिर को इन्हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ के ऊपर इस्लाम कबूल करते, कबूल करके रजी अल्लाह तआला अन्हु का ले डाले, अबुल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु बन गए, इस्लाम कबूल कर डाले ना, रजी अल्लाह तआला अन्हु बन गए। अब इन्हों 8 हिजरी में ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इंतकाल हो गए। वो बोलम ना आते टेम्पो रास्ते में हमला करेगा बोल को, वो हमला के वजह से इंतकाल हो गया, आखिरी वक्त में उन्होंने इंतकाल हुआ सोच उसके वजह से, वो हमले के वजह से उनका इंतकाल हो जाता। अब इसके बाद है नजाशी का जैसे एक बादशाह, ईसाई बादशाह, क्रिश्चियन बादशाह,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको वही डाल डाल इष्टम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते ऐसा नजाशी है ना उसका को जाको उसे पूछो पनाह मांगो उन देता नजाशी बादशाह ईसाई बादशाह है तो भी उन्हें अच्छा इंसान है तो उसे पनाह देता रहने के वास्ते तुम्हें जाओ पूछो कहते जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने के बाद सहाबा दर्जनों जाते उसके पास है वो का इलाका कहते हो हबशा हबशा इलाका अफ्रीका के इलाके में वहां जाको पूछते ऐसा पनाह लेना को बोल को उसमें एक मुश्रिक भी जाता उन जाको क्या बोलता कहते वो बादशाह जी तुम्हें लगा को पनाह देना न कोई लगा हमारे से गद्दारी करे तुम्हें को बोल के लगा पनाह दिए तो कब के अरब वाले तुम्हारे ऊपर आको हमला करवा देते तुम्हारी सी जंग लड़ते जंग होती को बोले तो जब वो बादशाह पूछता नजाशी पूछता तुम्हें कहीं का है क्या हुआ मुझे पूरा डिटेल ही बोलो तुम्हारा नबी क्या बोलता है क्या वक्त है तो ऐसा हमारे नजदीक है एक नबी जाहिर हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन्हें को नबूवत मिली ऐसा 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 होता रहा ये ऐसा दिन की दावत देते हैं तो लगा हम ना ऐसा ये कर डालते रहे बोलते रहे है तो वो उन मुश्रिक क्या बोलता रखते तो तुम्हारा खुदा के बारे में लगा गलत बात करते हैं को बोलते जब कई को ऐसे बोलता रखते तो गुस्सा आना को बोल को उसे उनको ने ईसा अलैहिस्सलाम जीसस के बारे में गलती होने बोलते हैं को बोल को बोलता उन्हें कौन है मुश्रिक बोलता है तो उन पूछता क्या बोलते हैं बोलो जीसस के बारे में क्या बोलते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बोलते हैं बोलो क्वेश्चन को उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु सूरह मरियम पढ़ को सुनाते सूरह मरियम पढ़ को सुनाने के बाद वो नजाशी बादशाह वह दरबार में है सो पादरा पूरे रोने लग जाते दाड़ा पूरे वो लगा के भिग जाते वत्ता रोते वो लगा सूरह मरियम सुनने के बाद वो फिर को उन्हें वो बादशाह नजाशी बादशाह अभी नहीं ये लगा झूठ बोलते हैं ये लगा करेक्टिच बोलता है मुश्रिक झूठ बोलता है ये सूर्य मरियम क्या है तो बोले कि वो पूरा करेक्टिच लगा बोले सो हमारे खुदा के बारे में लगा क्या भी गलती होने बोलना नहीं को बोल को तू चल जा वो बोल को मुश्रिक को भेजा डाल को हमारे वाले पना देता उसका इंतकाल होता वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते 9वें हिजरी में बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हमारा फलाना भाई का इंतकाल हो गया हमें जनाजे की नमाज पढ़ना हो बोल को वो काकी अफ्रीका में इनो है सो काकी मदीना में वो हबशा का इलाका अफ्रीका का इलाका हबशा में है सो उन्हें या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सो मदीने में अब क्या वक्त है तो ऐसी जनाजे की नमाज को अस्सला अलल गाइब को बोल को बोलते अब वह काकी है जाने होता नहीं का इस्टम को याचरों को नियत कर को वो जनाजे की नमाज पढ़ सकते वैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजाशी बादशाह की जनाजे की नमाज पढ़ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और सहाबा पूरे पढ़ते अब ऐसा हो जाने के बाद अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये पूरा हो गया ये जनाजे की नमाज पूरा हो जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने के वास्ते मक्का को जाओ को बोल को बोलते अब यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई को गए नहीं हज को अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कुछ कई को भेजे कहते तो ना कुछ वो टाइम को मुश्रिका क्या करते सो कहते तो जब वो लगा क्या तो पूछे तो वो लगा क्या तो ख्वाहिश पूरी हुई कर लो नंगे हो को वो लगा तवाफा करते सो काबे के गोल तवाफ करते सो नंगे हो को इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी नहीं जाना उसका से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजते जरा जनाक सहाबा को ले लो को तुम्हें चले जाओ तुम्हें जाओ हज कर को और तुम्हें को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते अब हज करने के वास्ते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को पूरा हज का तरीका सिखाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या करना कैसा करना क्या करने का पूरा सिखाते उन्होंने सहाबा को सिखाते किसी है तो लेके गए कि वो पूरे सहाबा को सिखाते कैसा करना क्या करने का अब ये इन्होंने ऐसा जाते रहते इन्होंने शुरू हुए हज के वास्ते रास्ते में है उधर से अल्लाह आयता उतारता आसमान से आयता उतारता वो आयता के बारे में अब अर्जेंट होने जाको अबू बकर को बोलना है आयता के बारे में ऐसा आयता उतरे को बोलकर अर्जेंट होने जाको बोलना चाहिए अब ये बारे में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हजरत अली को बोलते अरे फलाना फलाना हुक्म आया ये हुक्म जाको फौरन जाको अबू बकर कने को जाको तुम्हें मेरी तरफ से खड़ को पूरे जगह को ऐलान कर डालो ये बारे में बोला ऐसा ऐसा हुआ को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते अब वैसा चे शुरू हो जाते हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां ऑलरेडी हज के वास्ते शुरू हो जाते वहां मीना के दिने अरफात के दिने जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते वहां जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते क्या हो तुम्हें आए तुम्हें अमीर के हिसाब से आए नहीं क्या हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजेगा तो वो बोलते नहीं मैं अमीर नहीं तुम्हें चे हज में अभी अमीर है मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हुक्म दिए जाको हुक्म बोलो वो बोल को बोलते वो हुक्म क्या हो कि सबको जमा करते अरब वाले पूरे जमा कर को वो हुक्म क्या की सुनाते सूरह तौबा पहली आयत भी दूसरी आयत सुनाते उन्होंने वो दूसरी आयत में क्या क्या है कहते पहली आयत में दूसरी आयत में अब इसके बारे में
अब इसके हिसाब से क्या है कि वो 4 कंडीशन करके मैं बोलता हूँ, 4 कंडीशन है उसमें अल्लाह ताला उतारा है। सो पहले क्या कहते हो, इस्लाम कौन है तो नहीं लाया कि उसे जन्नत नहीं करने का बोल डाले अल्लाह। दूसरा कंडीशन क्या कहते हैं तो अब कौन तो नंगे आप मुश्किका कौन तो आको नंगे तवाफ करे जानी, कौन भी मुश्किक नहीं मामूल वाला नहीं, कौन है तो भी आको नंगा हो को तवाफ करे जानी को बोल को अल्लाह उतार डाले, नहीं करना वैसा को बोल को। बाद में मुश्किक कौन भी हज करे जानी, उम्रा करे जानी, वो इलाके में को कौन भी एंटर हुए जानी, मुश्किक का सुन कौन भी तुम्हें को बोल को 4 में कंडीशन है। मुश्किका से क्या तो तुम्हें मुआहिदे कर को है तो एग्रीमेंट कर ले को है तो अब सी वो रद्द हो जाना, अब सी वो रद्द कर को तोड़ डालना वो मुआहिदे को। बाद में से ये लगा सी मुआहिदे क्या भी नहीं, ये लगा को आपका भी तुम्हें रद्द करे तो ये लगा क्या तो ये हो जाते होने सी, ये लगा को खाली 4 महीने अल्लाह टाइम देता है, ये अल्लाह बोले से कंडीशन 4 महीने अल्लाह टाइम देता है, 4 महीने में तुम्हें किधर जाना कर ले तो उधर चल जाना, यहां से मक्का छोड़ को तुम्हें चल जाना चाहिए जेल होने, यहां से नहीं हमें छोड़ कर जाते नहीं को बोल को करते तो हमारे से आओ जंग लड़ना, किसी हमारे मुसलमान से आओ जंग लड़ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आओ ये लगा जंग लड़ना, वैसा नहीं को बोल करते तो कहा है तो दिखते कि वह गर्दना उड़ा डालना को बोल कर अल्लाह हुक्म देता। 4 महीने के बाद भी ये लगा नहीं गए तो मक्के के अंदर ही नहीं गए तो लगा तुम ना कहा दिखे तो आए लगा कि गर्दने उड़ा डालो को बोल कर अल्लाह हुक्म देता, ये जाओ को पूरे बोल डालते ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुक्म आए को बोल को। अब ये हुक्मा बोल डालने के बाद पूरा हो जाता, पूरा हज पूरा कर लेते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बाकी साहबा कौन कौन है तो गई की वो पूरे हज कर ले को वापस फिर मदीना आ जाते। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बात हमारे सामने आई इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अगर बोलने में गलतियां कोताहियां हुए तो अल्लाह इस कोताही को गलतियों को माफ फरमाए, और जो बात हक की बात हमारे सामने आई उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।